Welcome back to Ashchand Academy. We are discussing class 10th book of Lakshmi Singh and Manjeet Kaur published by Ashchand Publishing. And we have been talking about carbon and its compounds since so many videos in the past. Now this video is the part 2 video of hydrocarbons. Chapter 4 के hydrocarbons topic के अंदर हम सेकेंड वीडियो में अब हम और आगे की बात करेंगे. इससे पहले हमने हाइड्रोकार्बन्स की बेसिक डेफिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में बात की थी. Here we are going to talk about how to name them and are there any other types of hydrocarbons than what we have learnt in the previous video. तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि हाइड्रोकार्बन्स सीधी चेन की तरह होते हैं. They are linear. But do you imagine or can you imagine any other kind of hydrocarbons? क्या आप किसी और तरह के हाइड्रोकार्बन्स को इमेजिन कर सकते हो? You will find them. So in continuation with the previous video, जहाँ हम स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे, हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में देखा कि एल्केन्स में किस तरह से इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं. तो वहाँ पर जहाँ एक तरफ अलग अलग इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, एक कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग अलग एटम्स के साथ शेयर हो रहे थे. लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि कार्बन जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है दूसरे कार्बन के साथ. So one pair is making one bond and you can see here इस तरह से यहाँ पर डबल बॉन्ड ओरिजिनेट होता है. इसी तरह से एल्काइन में 3 पेयर शेयर हो रहे हैं. आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 pairs are being shared. So these pairs of electron which are being shared, there each of them is representing a bond. And here we see 2 bonds, but here we see 3 bonds, and that distinguishes an alkene and alkyne from the alkanes. एल्कीन और एल्काइन जो हैं वो एल्केन से किस तरह अलग होते हैं ये हमने देखा. तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं याद रखने के, जो एक तरह से गोल्डन रूल आप कह सकते हैं. इथेन C2H6 इज एन एल्केन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, सो इट शुड बी रिटन एज CH3CH3. इस तरह से इसको लिखा जाता है. दिस फॉर्मूला शोज दैट अ सिंगल बॉन्ड इज बिटवीन 2 कार्बन एटम्स. तो आपको ध्यान रखना है कि CH3 फिर सिंगल बॉन्ड लगाकर CH3 नहीं लिखना है. This is the point of emphasis here. कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं. So that is a misleading concept because it might show you that there is a bond between this hydrogen and this carbon. But reality में क्या है, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है इस तरफ. तो पहले हम H3C लिखेंगे, फिर एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे और फिर CH3 लिखेंगे. तो ये इनके लिखने के तरीके के बारे में कुछ बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें जो हैं बताई गई हैं. So in that way things have to be written in a proper manner so that people do not get misled by these things. Then further there is something which is related to what we have learned so far. कुछ problems यहाँ पर दिए हैं. ईथेन जिसका molecular formula C2H6 है, इसमें 6 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं. आपको बॉन्ड बताने हैं. आई थिंक ये आप स्ट्रक्चर जो अब तक हमने पढ़े हैं इनको देखकर बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. यू कैन गो बैक ऑन दोज थिंग्स and you can find out answer of these things. Similarly, there are a couple of more problems which are related to these things. One more thing which has been stated here, if you don't have a complete alkane but one of the atom is missing, like if you have methane which is written like this CH4, but you are not having one hydrogen here and this entire thing is connected to something else, then this whole thing will be called as methyl group. Rather than being called as methane, it will be called as methyl group. So for any alkane, if there is one hydrogen missing, then those things, remaining parts which can couple with anything are called as alkyl groups, जिनकी बात यहाँ की गई है. अब हम बात कर रहे थे कि जो then you can go for a couple of more problems. कुछ और problems आप यहाँ देख सकते हैं, sample problems which are related to these things. Then I was talking to you about whether all the hydrocarbons are linear or not. So an interesting thing has been given here. एक बहुत interesting बात यहाँ दी गई है कि जरूरी नहीं है कि जब हाइड्रोकार्बन्स बने तो वो एक लाइन में, एक चेन में जुड़ते चले जाए. ऐसा नहीं है कि कार्बन 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 ऐसे जुड़ते चले जाएंगे और हाइड्रोकार्बन हमेशा स्ट्रेट चेन ही होंगे. कार्बन को तो अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है. इट हैज गॉट 4 वैलेंसीज, राइट? सो these 4 valencies can either be met by 4 different atoms or it can even get cyclized. ये लास्ट वाला कार्बन टर्न होकर इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड भी तो बना सकता है. So in that manner
you will have cyclic hydrocarbons which have been shown here. साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी बन सकते हैं। ये देखिए, ये 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, सीधा भी हो सकता था, लेकिन लास्ट वाला कार्बन, आप किसी को भी लास्ट मान सकते हैं, वो कार्बन फर्स्ट कार्बन से कनेक्ट हो गया एंड दैट गिव राइज टू साइक्लिक कार्बन। तो यहाँ पर 6 कार्बन के एक साइक्लिक स्ट्रक्चर को दिखाया गया है एंड दैट इज साइक्लोहेक्सेन। और याद रखिए कि एल्केन जो है, अगर वो साइक्लिक है तो उनका जनरल फॉर्मूला फिर अब CnH2n+2 नहीं होगा, दिस इज ओनली फॉर लीनियर। क्योंकि जब वो साइक्लिक हो जाएगी तो लास्ट वाले कार्बन और फर्स्ट वाले कार्बन के एक एक हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, यानी कि 2 हाइड्रोजन कम हो जाने चाहिए जब वो साइक्लिक हो जाएगा। तो साइक्लिक एल्केन्स जो हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फॉर्मूला CnH2n, यानी कि 6 कार्बन की एक साइक्लिक एल्केन है तो उसका फॉर्मूला होगा C6H12। लेकिन अगर वही लीनियर एल्केन है तो उसका फॉर्मूला होगा C6H14। सो दैट इज समथिंग विच हैज़ बीन एम्फसाइज्ड हियर। यहाँ पर और भी कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप 6 के अलावा 5 कार्बन की बात कर सकते हैं। सैचुरेटेड की तरह ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं, वो भी साइक्लिक हो सकते हैं, दे कैन ऑल्सो बी साइक्लिक। सो बेंजीन इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल, जिसमें कई सारे डबल बॉन्ड्स होते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर, इट हैज़ अ फॉर्मूला C6H6। सो आफ्टर दिस, when you learned that how hydrocarbons can also exist as cyclic molecules, one very important aspect which has been given in this book here is how to name hydrocarbons. So naming is very important. See, all of you have names, everybody around us has names. मेरा भी एक नाम है, आपका भी एक नाम है, आपके फ्रेंड्स का भी एक नाम है, क्योंकि वो हमें रिकग्नाइज करने में मदद करता है। और हमारा नाम जो है एक तरह से यूनिवर्सल होता है, आपके सर्टिफिकेट्स में, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब में आपका नाम रहता है। तो इसी तरह से जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, अगर इनके नाम बदल बदल कर यूज़ किए जाएंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। मान लो इंडिया में कोई और नाम यूज़ हो रहा है, बांग्लादेश में कोई और नाम यूज़ हो रहा है, यूरोप में कोई और नाम यूज़ हो रहा है, तो एक साइंटिफिक कम्युनिटी कभी भी उन नेम्स को लेकर एक कंसेंसस नहीं बना पाएगी। एंड व्हेन दे विल बी कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्कसिंग थिंग्स। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो आप यहाँ कार्टून देख रहे हैं, इसमें दिस इज़ नॉट मेयरली अ कार्टून, बट इट इज़ टेलिंग यू अ वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडी which is called IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, जो कि केमिकल्स के नाम डिफाइन करने में मदद करती है। तो आप देख रहे हैं यार, लोग अपने केमिकल्स लेकर जा रहे हैं अंदर, एंड IUPAC is giving them name. So you don't have to go there, but these rules are already given in your book. आपकी किताब में ऑलरेडी वो रूल, वो नियम दिए गए हैं, वो स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिनकी मदद से आप कंपाउंड्स को नाम दे सकते हैं। सो लेट्स हैव अ क्विक लुक एट व्हाट आर दीज रूल्स। इन रूल्स पर हम एक जल्दी से क्विक लुक देखते हैं। यू कैन इवन गो थ्रू द इंटायर थिंग बाय योरसेल्फ, आप पढ़ते समय इन चीज़ों को खुद समझ जाएंगे। अगर आपको एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को नाम देना है तो जनरली किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब आप नाम देते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें एक सेट ऑफ प्रीफिक्स होता है और एक सफिक्स होता है, यानी कि वर्ड का आधा हिस्सा होगा और एक आगे का आधा हिस्सा होगा। सो वन पार्ट इज कॉल्ड एज प्रीफिक्स, अदर पार्ट इज कॉल्ड एज सफिक्स। जैसे आपका सरनेम है तो वो सफिक्स हो गया, शुरू में आपके मिस्टर, डॉक्टर, मिसेस जो भी लग रहा है, दैट इज प्रीफिक्स। तो इसी तरह से हाइड्रोकार्बन्स को हम नाम देते समय एक प्रीफिक्सेस होते हैं, जैसे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। सो दिस प्रीफिक्सेस रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर वो एक कार्बन का मॉलिक्यूल है तो उसके आगे मेथ लगेगा, अगर 2 कार्बन का है तो एथ लगेगा, 3 कार्बन का है तो प्रोप लगेगा, 4 कार्बन का है तो ब्यूट लगेगा। तो इस तरह से प्रीफिक्सेस आप डिसाइड कर लेते हैं। इसके बाद अगर वो एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है तो उसके लिए सफिक्स अलग अलग है। अगर वो एल्केन है, इफ इट इज एल्केन, सो यू आर ऑलवेज गोइंग टू यूज ANE, यानी कि एक कार्बन वाला एल्केन मेथ प्लस एन, दैट विल बिकम मिथेन। 2 कार्बन वाला जो है इथेन, 3 कार्बन वाला प्रोपेन, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन।
लेकिन अगर यही एल्कीन है, इफ इट इज एल्कीन, देन इंस्टेड ऑफ एन यू विल यूज ईन, मिथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस तरह से आप इनको नाम देंगे। लेकिन क्योंकि मेथ के साथ ईन केवल हाइपोथेटिकल हो सकता है, एक कार्बन की एल्कीन होगी नहीं, तो मिथीन जैसा वर्ड आपको नहीं देखने को मिलेगा। यू विल स्टार्ट विद इथीन, ब्यूटीन, प्रोपीन, इस तरह से आप इनको नाम देते हैं। सो दिस इज हाउ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस हैव बीन गिवन different names. इन, and ine, these are suffixes which are used for alkane, alkene and alkyne respectively, and these are prefixes which depends on the number of carbon atoms, जो carbon atoms के नंबर पर डिपेंड करती हैं। तो यही सारी बातें यहाँ पर इन डिस्क्रिप्शंस में बताई गई हैं, और कुछ स्पेसिफिक रूल्स जो IUPAC ने डिफाइन किए हैं, लेट मी रीड अलाउड फॉर यू। मैं आपको एक बार थोड़ा सा इनको पढ़कर सुना देता हूँ कुछ रूल्स को। सबसे पहले आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को नाम देते समय सबसे लंबी चेन जो है उस मॉलिक्यूल की, उसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद अगर कोई अल्काइल ग्रुप इसमें साइड चेन की तरह प्रेजेंट है तो उसको आप सेपरेटली लिखेंगे। जैसे अगर एक ब्यूटेन है, ब्यूटेन में एक मिथाइल ग्रुप अलग से लगा हुआ है, तो आप देखेंगे कि वो किस पोजीशन पर लगा हुआ है। कार्बन एटम्स ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आर नंबर्ड इन सच अ वे दैट अल्काइल ग्रुप, अगर कोई लंबी कार्बन चेन है और उस पर कोई सब्सटीट्यूएंट लगे हुए हैं, कोई और ग्रुप लगा हुआ है बीच में, देन यू विल बी नंबरिंग द एंटायर थिंग। इस तरह से आप नंबर करेंगे कि वो ब्रांच को सबसे कम नंबर मिले, उसको हम लोएस्ट लोकेंट रूल भी कहते हैं। तो इस तरह के कुछ रूल्स, बहुत डिटेल्ड रूल हैं। आई मीन जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे आपको इनके और सब पार्ट्स मिलेंगे, कुछ में कुछ जगह और फर्दर रूल्स मिलेंगे, सब डिविजन्स मिलेंगे। बट एज ऑफ नाउ आपके क्लास के लिए, आपके स्टैंडर्ड्स के लिए जो यहाँ पर 5 बेसिक रूल दिए हुए हैं इन पेजेस में, इन रूल्स को आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके बाद आपको कुछ नहीं, सिंपली एक पेपर और पेन लेना है, कोई भी मॉलिक्यूल आप अपना याद करने के लिए लिखिए। लेट्स से आई स्टार्ट मेकिंग दिस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। मैंने कार्बन बनाए, इस पर हाइड्रोजन बना दिए। आई रोट हियर हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। यहां पर मैंने एक और कार्बन लगा दिया और यहां पर एक और कार्बन लगा दिया और इस पर हाइड्रोजन लगा दिया। अब आपसे पूछता हूं मैं इसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहला रूल हम अप्लाई करेंगे कि सबसे लंबी चेन ढूंढेंगे इसमें। तो 1 2 3 4, अगर ऐसे जाते हैं तो 4 कार्बन। इसी को अगर 1 2 3 4 5 इस तरफ मुड़ जाते हैं तो ज़्यादा लंबी चेन मिल गई। यानी कि हमारे लिए ये सबसे लंबी चेन चूज करना ठीक रहेगा। तो 5 कार्बन की हमने एक चेन चूज कर ली, इसका मतलब प्रीफिक्स हमें पेंट यूज करना है। 5 कार्बन के लिए पेंट प्रीफिक्स होता है। अब इस 5 कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है, इसे हम ब्रांच कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये कौन सा ग्रुप है? दिस इज अ मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप कौन से नंबर के कार्बन पर लगा हुआ है? तीसरे नंबर के कार्बन पर। तो यहां हम लिखेंगे सबसे पहले 3 मिथाइल पेंट, और क्योंकि ये एल्केन है, कोई इसमें ब्रांचिंग नहीं है, तो इसी के साथ सफिक्स लग जाएगा एन, 3 मिथाइल पेंटेन। इस तरह से सिंपली इनको नाम दिए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको इस चैप्टर में आगे मिलेंगे। जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो देखिए हर जगह एग्जाम्पल्स, सफिक्स लगे, कुछ जगह ब्रांचेस लगे हुए, एक से ज़्यादा ब्रांचेस। और भी आप अगर आगे देखेंगे तो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड वाले का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। और यही ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल NCERT की जो आपकी बुक है उसमें भी पूछे गए हैं, उनके नाम आपको लिखने आने चाहिए। सो दैट विल बिकम मोर फ्लुएंट एज यू प्रैक्टिस देम मोर। जैसे जैसे आप इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप इसमें ज़्यादा फ्लुएंट होते चले जाएंगे। एक चीज़ जो यहाँ पर हाईलाइट की गई है दैट इज़ आइसोमर्स। तो आइसोमर एक टर्म है जो दिया जाता है ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए जिनका फॉर्मूला तो सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग है, उनको हम आइसोमर्स कहते हैं। एक एग्जाम्पल की मदद से यहाँ समझाया गया है। जैसे कि एक हाइड्रोकार्बन है, उसमें आप देखिए कि इस हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन एटम्स हैं? 4। और इसको हम क्या नाम देंगे? ब्यूटेन। इसका फॉर्मूला है C4H10।
लेकिन इसी मॉलिक्यूल को एक दूसरे तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इफ़ यू गो टू द नेक्स्ट पेज तो आप देखेंगे कि ये दूसरा स्ट्रक्चर जो दिया है, इसमें देखिए इसका फॉर्मूला भी C4H10 है, इसमें भी उतने ही हाइड्रोजन उतने ही कार्बन है, लेकिन यहाँ पर CH3 पहले यहाँ लगा हुआ था, वो अब यहाँ लग गया। तो दिस मॉलिक्यूल्स विल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इनका जो नेचर है वो अलग होगा, लेकिन इनका फॉर्मूला एक ही है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं आइसोमर्स। पिछला मॉलिक्यूल ब्यूटेन था, नॉर्मल ब्यूटेन था, ये मॉलिक्यूल आइसोब्यूटेन कहलाता है। सो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हज़ारों कंपाउंड्स मिलेंगे जो आइसोमर्स होते हैं, और आइसोमर्स के कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं रियल लाइफ में भी कनेक्टेड होते हैं, रियल लाइफ से भी कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि नॉर्मल ब्यूटेन जो है दैट हैज़ अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, जबकि आइसोब्यूटेन जो है उसमें ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होता है। तो हम जो घरों में कुकिंग गैस यूज़ करते हैं, LPG यूज़ करते हैं, उसमें दोनों ही चीज़ें होती हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ दीज थिंग्स, नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। If it is only pure normal butane, it will have different properties. If it is pure isobutane, it will have different properties. तो यही सारी बातें यहाँ पर इस पेज पर की गई हैं, आइसोमर्स के बारे में बताया गया है। And then there are some problems to understand what isomers are. So this part will then end with a very short or a quick exercise for you, where you will find plenty of small answer type questions, short answer type questions, and then long answer type questions, all related to hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर, उनका नॉमेनक्लेचर, आइसोमर्स, इससे रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। एंड देन द लेटर पार्ट विल एंड विद अ वेरी स्मॉल टॉपिक कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। तो ऑलरेडी आप इस टॉपिक को वैसे पढ़ चुके हैं, बट द ओनली थिंग इज दैट यू डोंट नो द नेम ऑफ दिस। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जब हम हाइड्रोजन्स की एक सीरीज बनाते हैं तो एक कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन मीथेन कहलाता है, 2 कार्बन वाला इथेन कहलाता है, 3 कार्बन वाला प्रोपेन कहलाता है, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन कहलाता है, 5 कार्बन वाला पेंटेन कहलाता है। तो अगर इनको एक सीरीज में हम लिखते हैं, देन दिस एंटायर सीरीज विच बिलोंग टू अ सेम फैमिली, ये सब क्या, ये एक फैमिली है। इसमें 1 कार्बन था, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, लेकिन सबका जनरल फॉर्मूला तो सेम ही है ना। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका जनरल फॉर्मूला सेम हो और उनमें एक एक करके n की वैल्यू बढ़ रही हो, पहले n की वैल्यू 1 थी, फिर n की वैल्यू 2 हुई, फिर n की वैल्यू 3 हुई, तो ये पूरी सीरीज क्या कहलाएगी? दिस सीरीज इज कॉल्ड एज होमोलोगस सीरीज। एंड यू कैन सी एग्जाम्पल्स हियर। मीथेन से लेकर पेंटेन तक एक होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज में प्रॉपर्टीज जो हैं काफ़ी मैच करती हैं, तो जो रिसर्चर्स हैं, जो केमिस्ट हैं, वो होमोलोगस सीरीज को इकट्ठा ही एक साथ उसका एक रिप्रेजेंटेटिव पढ़ लेते हैं और ये मान लेते हैं कि बाकी मॉलिक्यूल जो है उस सीरीज के, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो लगभग सिमिलर होंगी। सो दैट इज समथिंग व्हाई वी मेक यूज ऑफ होमोलोगस सीरीज। एक फैमिली है जिसमें एक मेंबर के बारे में अगर हम जान लेते हैं तो बाकी मेंबर्स की भी हमें आसानी से जानकारी हो जाती है। सो होमोलोगस सीरीज कैन बी ऑफ एल्केन, सिमिलरली एल्कीन की भी होमोलोगस सीरीज हो सकती है, और इसी तरह से एल्काइन की भी होमोलोगस सीरीज हो सकती है, जो कि यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। एंड देयर हैव बीन ऑल्सो सम एग्जाम्पल्स, जैसे कि बनानास का एग्जाम्पल दिया गया है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो एल्काइन एसिटाइलिन या इथाइलिन होती है वो फ्रूट की राइपनिंग में मदद करती है। तो डे टू डे लाइफ में भी कहीं ना कहीं इस तरह से ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट नाउ एंड्स हियर। ये पूरा पार्ट जो है यहाँ पर ख़त्म होता है होमोलोगस सीरीज़ के साथ विद सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो मैं आपसे कहूँगा कि अब तक हमने इस पार्ट 2 ऑफ हाइड्रोकार्बन्स वीडियो जो है इसमें हमने क्या देखा। वी लर्नड about whether hydrocarbons can only be linear, and the answer was no, they can also be cyclic. The formula for cyclic hydrocarbon is different than formula for linear hydrocarbons. उनका फॉर्मूला अलग होता है क्योंकि 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। अगली बात जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट देखी कि हाइड्रोकार्बन्स को नाम देने के लिए एक कमेटी है। इनफैक्ट पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने के लिए एक कमेटी है जिसको IUPAC कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और उन्होंने कुछ रूल्स हमें बताए हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम उनको नाम देते हैं ताकि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो सकें, कोई वेरिएशंस ना आए। और फाइनली
end में we have looked at some exercise and then ended this video with a discussion on a term called homologous series. होमोलोगस सीरीज़ के बारे में हमने बाद में बात की और ये भी जाना कि होमोलोगस सीरीज़ को पढ़कर हमें क्या फ़ायदा होता है. इट्स लाइक अ फैमिली एंड इफ़ वी रिमेंबर और इफ़ वी लर्न अबाउट वन पर्सन और वन individual, then we learn about the entire family. So that was all in this video. I hope the concepts became little more clear. आपको अपनी किताब के पढ़ने के साथ साथ इन वीडियोस को देखने से अच्छा समझ में आ रहा है. You can do that in either ways. आप ये वीडियोस बुक चैप्टर शुरू करने से पहले देख सकते हैं और फिर चैप्टर पढ़ सकते हैं, या फिर आप एक बार चैप्टर पढ़ने के बाद इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इम्प्रूव हो पाए. So if it is helping you, you can like, share and subscribe this channel and stay connected with us for more videos on these topics. Thank you for watching. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.